Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. Hello friends, welcome to the third session of economics. I am really very sorry that I got stuck in some other work and I was unable to share the third video. So today I am making the third video for business cycle. So till now what all things we have covered I will just mention here once I will share the link for other two videos also. So till now what we have covered is we have covered macroeconomy, we have covered fiscal policy and monetary policy. So now we are going to cover the remaining portion of our syllabus, that is nothing but understanding of the business cycle. So let's see, what do you mean by a business cycle? A business cycle is a cycle of fluctuation, upward and downward movement in the in relation to the GDP around the long term growth trend, also known as trade cycle or a economic cycle. इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से जीडीपी के फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिस तरह से जीडीपी ऊपर नीचे होती है, उसी तरह एक बिजनेस का भी साइकिल ऊपर नीचे होता है, एंड दैट साइकिल विल हैव अ अपवर्ड मूवमेंट एंड अ डाउनवर्ड मूवमेंट आल्सो. That kind of a cycle is called as business cycle or a trade cycle or a economic cycle. The business cycle relates to expansion as well as contraction in the economic activity experienced by overall economy over time. That means that you are comparing your business cycle is to the country's business cycle also. So whenever the whenever the country will see a upward trend, your business cycle will also probably see a upward trend. And when the country's economic cycle will see a downward trend, then your economic cycle will also see a downward trend. It denotes the increase and drop in the production output of goods as well as service in the nation's economy. मतलब ये पूरा कंट्री का, पूरा नेशन का इकोनॉमी जिस तरह से चलता है कि कभी ऊपर जाएगा, फिर कहीं स्टेगनेंट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस धीमे धीमे करके ऊपर आएगा. सी, कंट्री का पूरा जो अपना इकोनॉमी है, इट नेवर रन्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलवेज हैव अ वोलेटिलिटी इन इटसेल्फ. तो व्हाट डज अ बिजनेस साइकिल मीन्स कि ये वोलेटिलिटी को समझने के लिए जो हमारी बिजनेस साइकिल होती है, उसको हम लोग इस टॉपिक के द्वारा समझेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वोलेटिलिटी इन द बिजनेस साइकिल. Business cycle is considered to be complete when it undergoes a single boom and a single contraction in sequence. So if I stop here and I ask you कि इंडिया आज के टाइम पे कौन सी बिजनेस साइकिल फेस कर रहा है, तो इट द आंसर इज इंडिया ने 2008 में भी रिसेशन की एक बिजनेस साइकिल फेस की थी, एंड 2020 में भी, विच इज लाइक द पीरियड ऑफ कोविड, वी सॉ अ समवट रिसेशन का ट्रेंड बिकॉज द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री रियली वेंट डाउन. The corresponding period of time is referred to as length in the business cycle. A boom corresponds to period of rapid growth, while contraction refers to a period of a staggered or a low level economic growth. Business cycles are usually measured by considering the growth rate of real GDP. यहाँ पे हम लोग real GDP लेते हैं, ना कि nominal GDP. We will always take the real GDP which is adjusted by the inflation. व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, ये हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया था. होपफुली आप लोग को वो याद है. अब आइए पहले देखते हैं कि बिजनेस साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस साइकिल होता क्या है. देखिए, बिजनेस साइकिल का ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि पहले इट एज अ एक्सपेंशन फेज की आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, धीमे धीमे योर इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग. सी, यहाँ पे आप देखिए एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है. फिर जाकर वो एक एकदम टॉप पे पहुंच जाती है कि वो दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट वेर योर इकोनॉमी कैन राइज. टॉप पे पहुंचने के बाद क्या होता है, धीमे धीमे करके इकोनॉमिक फॉल होना चालू होती है, एंड उस फेज को हम लोग रिसेशन बोलते हैं, जो शायद हम लोग अभी फेस कर रहे हैं. रिसेशन के बाद और एक फेज आता है जहां पे पूरा कंट्री का इकोनॉमिक्स एकदम खत्म हो जाता है. उस फेज को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं. डिप्रेशन फेज का या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड का जो लास्ट पॉइंट होता है, उसको हम लोग थ्रफ फेज बोलते हैं. यहाँ पे इकोनॉमिक इज एट द वर्स्ट कंडीशन, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिकवरी ऑल्सो. Though it's a worst condition, it is also a starting point of recovery.
यहाँ से धीमे धीमे करके रिकवरी चालू होता है, रिकवरी होने के बाद फिर वापस एक्सपेंशन फेज आता है, फिर वापस हम लोग एक पीक फेज में पहुंचते हैं एंड फिर वापस रिसेशन आता है। तो दिस इज अ साइकिल, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, कभी कुछ, बट ये साइकिल चलते रहेगा। और अ सिंगल साइकिल ऑफ अ एक्सपेंशन से लेकर रिकवरी तक का ये जो पूरा साइकिल है कि आप ऊपर गए, पीक पे आए, फिर नीचे आए, डिप्रेशन आया, थ्रफ आया एंड फिर आप रिकवर हुए, ये जो पूरी एक साइकिल है इसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। अब आइए एक एक कंपोनेंट को अलग अलग से समझते हैं, बिकॉज उससे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। The various phases of business cycles are fluctuations experienced by the nation's economy, with boom in economic activity in one period and contraction in those activities in subsequent period. These business cycle phase correspond to the variations in several economic activities with regard to investment, production, wages, employment, prices, and credit. It has been divided into 5 major categories. Let's understand each of them. सबसे पहला कैटेगरी है एक्सपेंशन स्टेज। एक्सपेंशन स्टेज में क्या होता है? इन द फर्स्ट फेज वेयर अंडर कंसिडरेशन दैट corresponds to an increase in various positive economic factors, indicators including income, output, production, employment, wage, profit, sales, demand, as well as supply of goods and services. In this expansion phase, the debtors are relatively in a good financial condition and repaying their debts on time. The creditors lend funds at a higher interest rate, the investment is high, and so the flow of money in the economy. तो एक्सपेंशन स्टेट में समझिए होता क्या है। इस स्टेज में आपके कंट्री के जो सारे पैरामीटर्स है दे आर वर्किंग एट अ गुड स्लैश ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे आपके जो कंट्री के इनपुट और आउटपुट है, जैसे आपकी जितनी भी इनकम होती है, जो आउटपुट होती है, प्रोडक्शन आपका हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो आपकी सैलरी पे कर रहे हो, कंपनीज का जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल डिमांड जो है कंट्री की इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे ऑल आर इंक्रीजिंग, ये सब इंक्रीज हो रही है। आपके जो डेटर्स है दे आर पेइंग यू ऑन टाइम, आपके जो क्रेडिटर्स है दे आर गिविंग यू लिवरेज एट अ गुड इंटरेस्ट रेट, एंड ओवरऑल कंट्री का इन्वेस्टमेंट इज हाई एंड दैट्स व्हाई द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी इज वेरी गुड। तो ऐसा जो फेज होता है जब ये पर्टिकुलर स्थिति होती है, ओके, उस फेज को हम लोग एक्सपेंशन फेज बोलते हैं। पीक फेज क्या बोलता है? द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड ओवरऑल ग्रोथ अचीव ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज रीचेज अ सैचुरेशन। देखिए एक चीज याद रखें, इकोनॉमिक का एक बहुत बहुत ही प्रूवन लॉ है कि नथिंग इज परमानेंट इन नेचर। ओके, सो इसके द्वारा इसमें क्या होता है कि आप कभी भी ऊपर जा रहे हैं तो आप परमानेंटली ऊपर जाते नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको आके रुकना ही पड़ेगा। इधर यू विल गेट टायर्ड और देयर विल बी सम अदर एक्टिविटीज विच विल हैपन, वो सब होगा। तो आप देखिए जहाँ पे आपने एक्सपेंशन स्टेज में देखा आपका सारा चीज ऊपर जा रहा है, आपका सारा चीज इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है, आपका इनकम, आपका सेल्स, आपका प्रोडक्शन, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, आपका वेजेस, सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो ये कब तक ऊपर जा पाएगा? इसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जो इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है वो हम लोग उसको एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। कंट्री उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ। दिस रिफर्स टू एज पीक फेज, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एक्सपेंशन से वो मैक्सिमम पॉइंट पे आप आ गए, ये आपका एक्सपेंशन फेज था, दिस वाज अ एक्सपेंशन फेज। ये जो पॉइंट है जहां पे एकदम पीक पे आ गए हो आप, इससे ज्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं पीक फेज। ओके, where the increased growth rate in the business cycle reaches its optimum or the maximum level. In this phase, that the economic indicators like production, employment, sale prices are at their highest and do not rise further. वो लोग इस एक पॉइंट के ऊपर नहीं जा सकते। As the prices are at their peak, customers start to restructure their budget for spending and plan to spend less. आप सोच के देखिए अगर हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो कस्टमर का तो एक लिमिटेड इनकम है, कस्टमर कहाँ से ज्यादा पैसा लेकर आएगा? जितना वो ज्यादा ला सकता था वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है पीक फेज पे, उससे ज्यादा वो किस तरह से लाएगा? बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस दैट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस फेज में एंड आपका इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से कंट्री को हिट कर देता है पीक फेज में। उसके कारण क्या होता है, एट द पीक फेज आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है
लोगों के पास जितना मनी पावर होता है वो लोग उससे उसको यूज करने का ट्राई करते हैं. दे ट्राई टू परचेज गुड्स एट एज हाई रेट एज पॉसिबल, बट दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. वो इकोनॉमी के लिए अच्छा बात नहीं है. एंड इकोनॉमी करेक्ट्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल. बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसीज और मॉनिटरी पॉलिसीज के द्वारा दे ट्राई टू कर्ब द मनी पावर विच इज देयर इन द हैंड ऑफ पीपल राइट नाउ. They will try to change the fiscal policy and monetary policy in a way कि people do not have that high purchasing power left in their hand. They will change the tax rates, they will do certain adjustments in the monetary policies and all, and then they will try to bring down the cash in hand of the people. उससे क्या होगा, आपका पीक फेज का ओवर होगा, पीक फेज खत्म होगा और आपका एक रिसेशन फेज आना चालू होगा जहां पे सारी ये जो करेक्टिव एक्शंस होनी है गवर्नमेंट के तरफ से वो सब टेक प्लेस करेगी. The phase that follows the peak phase is the recession or contraction phase. The highest price point touched during peak phase leads to customer deciding to spend less. जैसे मैंने आपको समझाया कि प्राइस बढ़ते जा रहा है और कस्टमर का पावर धीमे धीमे कम होते जाएगा बिकॉज उसकी इनकम एक पॉइंट के बाद बढ़ नहीं सकती इन द पीक फेज, तो वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगा एंड देयरबाय रिड्यूसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. Okay, the demand falls continuously and rapidly during the recession phase. Without the producer noticing the reduced demand instantly and who to produce, leading to more supply in the market. Such a situation leads to fall in price and as a result the relevant positive economic indicators like output, wages, income etc. begin to fall. मतलब आप समझने का कोशिश कीजिए, आपका कंट्री एकदम एक पीक फेज में चला गया था. उस पीक फेज में जाते ही कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया. इन्फ्लेशन हाई होने के चक्कर में क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और डिमांड बढ़ने के चक्कर में क्या होता है, कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चालू कर देती है. पैरेलली व्हाट हैपेंस, बिकॉज देयर प्राइसेस हैव इंक्रीज टू मच, जो कस्टमर होता है वो अब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिकॉज कस्टमर का बजट लिमिटेड होता है. बट ये जो फेज होता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, कंपनीज डू नॉट रियलाइज कि ये फेज हिट हो चुका है. ओके कि कस्टमर्स आर ट्राइंग टू सेव मोर इन कंपेरिजन टू स्पेंड मोर. तो कंपनीज का प्रोडक्शन तो ऑलरेडी चल रहा होता है और प्रोडक्शन चल रहा होता है और डिमांड कम हो गई है, तो आप सोच लीजिए आप वो लोग एज इट इज हाई डिमांड पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो हाई डिमांड धीमे धीमे करके कम हो रही है. तो प्रोडक्शन इज हैपनिंग एट अ हाई डिमांड बट द सप्लाई, आपको जो एक्चुअल कंजम्पशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. तो नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपका मार्केट में आप जो सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, दैट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द प्राइसेस. एंड प्राइसेस अगर नीचे आ गए, प्राइसेस अगर गिरना चालू हो गए तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट तो आएगा ही. आपके जो फैक्टर्स की इंडिकेटर्स होते हैं लाइक आपका सेल्स, इनकम, वेजेस एक्सेट्रा, वो सब गिरना चालू हो जाता है रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन फेज में. फोर्थ फेज होता है डिप्रेशन फेज. When the recession phase continues for a long time, the economic activity start falling below the normal level, thereby making the growth rate of the economy turn negative. This triggers the depression phase where there is a continuous decline in the economic growth and rise in unemployment. So one of the biggest indicator for depression phase is कि negative GDP and rise in unemployment. ऐसा जब phase आता है तो वो depression phase होता है. This generally comes for a very small period of time and generally आपको देखने में भी नहीं आएगा because government will not want the people to look at this situation. Generally government आपका recession phase से सीधा trough phase की तरह move करती है. ओके वैसे होता है. As a depression phase continues to cause rapid decline in expenditure as well as national income, it gives rise to more debtors who are unable to repay their debts. आप सोचिए जब हमारा पीक फेज था या फिर तो हमारा जो एकदम फर्स्ट वाला जो हमारा फेज था विच वाज एक्सपेंशन फेज, उसमें क्या इंडिकेटर था कि डेटर्स वर एबल टू पे द डेट्स वेरी इजीली, क्रेडिटर्स वर एबल टू गिव लोन वेरी इजीली. मगर जो थ्रफ फेज होता है उसमें क्या होता है, बिकॉज इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई है कि डेटर्स आर अनेबल टू पे देयर डेट्स. जिन्होंने लोन देकर रखे हुए थे उनके लोन रिकवर नहीं हो रहे हैं. तो एवरीबडी इज इन अ मॉनिटरी क्रंच, कंट्री में एक मॉनिटरी क्रंच हो जाता है. This results in lowering the interest rate, which will make the banks to give less preference to lending money to people, thereby lending to have excess cash balance. This is
the point where the decline reaches its maximum level beyond which the economy cannot slide further. जिस तरह से हमने देखा था कि ऊपर जब कोई चीज जाता है तो वो एक लिमिट तक ही ऊपर जा सकता है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है। उसी तरह जब कोई चीज नीचे जाता है तो वो भी एक लिमिट तक ही नीचे जा सकता है, उसके बाद वो नीचे जाना भी सैचुरेट हो जाता है। तो जो नीचे जाने का एकदम लास्ट पॉइंट होता है वो हमारा थ्रफ पॉइंट होता है। This is the trough phase that corresponds to the negative saturation point of the economy or the lowest possible level to which the economy can shrink. After trough point, what happens? Recovery. जिस तरह पीक पॉइंट के बाद, जो पीक पॉइंट था उसके बाद रिसेशन आता है, यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाता है। थ्रफ स्टेज जो होता है उसके बाद रिकवरी आती है। यहाँ पे धीमे धीमे करके मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, धीमे धीमे करके डिमांड बढ़ती है एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल। द रिकवरी फेज इज वन दैट विटनेसेस द टर्न अराउंड पोस्ट द थ्रफ फेज and where overall economy begins to recover steadily from the negative growth rate. After an economy shrinks to the lowest level on the negative side of the growth rate, here happens a trend change or a reversal for the business cycle in a positive direction. In this phase, demand for the product start increasing due to lower price levels and eventually supplies are built up as well. The people, companies and the overall economy starts thinking positively for employment एंड इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू विच प्रोडक्शन स्टार्ट्स रेजिंग। मतलब धीमे धीमे करके जैसे जैसे देखिए हम लोग सब एक, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस ओनली रन द इकोनॉमी। द मिनट यू सी अ पॉजिटिव ट्रेंड, आप धीमे धीमे करके थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखते हैं तो आप उस पॉजिटिव ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो आफ्टर द थ्रफ फेज व्हेन यू सी दैट द प्राइसेस लेवल हैव गॉन लो, गवर्नमेंट हैज चेंज्ड सर्टेन पॉलिसीज एंड गिवन यू मोर पावर टू स्पेंड, तो अब क्या करते हो, आप मार्केट में जाके चीजें खरीदने लगते हो। एंड वंस यू गो इन द मार्केट एंड स्टार्ट प्रोक्योरिंग थिंग्स, so what will happen, slowly demand of the products will increasing and it will start matching the level of supply. वो जो फेज होता है, इससे क्या होता है, जो नेगेटिव ग्रोथ रेट चली गई होती है इकोनॉमी की, वो धीमे धीमे करके रिकवर होती है। दिस फेज कंटिन्यूज till an economy comes back to a steady growth rate level, thereby completing one full business cycle of boom and contraction, with peak and trough being the positive saturation and negative saturation point respectively. Hope this is clear to all of you. What are the various factors for business cycle? आपको ये एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज को कंट्रोल कर सकती है और क्या क्या चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जो चीजों को कंट्रोल कर सकती है वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे, जो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे कि अगर कोई कंट्री ने आपके खिलाफ वॉर छेड़ दिया, आप किसी के खिलाफ वॉर छेड़ रहे हैं, दैट इज अ इंटरनल फैक्टर। बट किसी कंट्री ने आपके खिलाफ वॉर डाल दी, इफ समबडी हैज अटैक्ड यू, say for example China attacks India, so that is a external factor. Say for example Y2K आया था तो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, it was not in our control, it was completely out of our control. COVID-19, it's a natural disaster, it is not in our control. जो उड़ीसा में पूरा रेंज आता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, that is a natural factor. Population growth is not somewhere it's in our control, but overall level पे देखा जाए तो it is an external factor that impacts the business cycle. इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, दैट इज द इंटरनल फैक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दैट बाय चेंजेस इन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं लोगों के, दैट इज आल्सो इंटरनल फैक्टर्स, बिकॉज दोज कैन बी कंट्रोल्ड विद मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। ओके, मनी सप्लाई जो हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होंगे, वो सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे आर कंट्रोलेबल थ्रू various different policies that government can build out in terms of fiscal and money policy. Diagram I have explained you what does it mean. So if I have to summarize, this is very important. Please remember ये वाला जो chart है, it is very important for you. इससे आपको at least 1 or 2 marks का MCQ आएगा and you will be able to score. So let's try to understand कि ये chart बोलता क्या है and इस chart का मतलब क्या है। सबसे फर्स्ट फेज है हमारा एक्सपेंशन फेज। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस। मतलब इन सिंपल टर्म्स डिमांड इंक्रीज होना चालू हो जाता है इस फेज में। ओके, डिमांड इंक्रीज होना चालू हुआ है,
मतलब लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए. इफ पीपल वांट मोर प्रोडक्ट्स, कंपनीज विल हैव टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, एंड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स कंपनी विल हैव टू एम्प्लॉय मोर पीपल. So there will be increase in employment, there will be increase in the economic growth, and upward pressure on prices will start. Second phase is the peak phase. इसमें क्या होता है? Employment reaches its highest level. Okay, the growth of the country also reaches highest level, and what happens is inflation hits the economy. Third phase, what is the contraction phase? इसमें क्या होता है? Because now your demand will start falling, you do not need that kind of a supply, you do not need that much amount of production. That will lead to reduction in employment, it will lead to slow reduction in economic activities, it will result into less pressure on prices and negative reversal of economic growth. Fourth phase is depression. यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूस फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज डिमांड अभी भी गिरते ही जाएगा, डिमांड विल कीप फॉलिंग. So you do not need that many industries to produce that much amount of quantity. That's why employment will fall. सर्विसेज उतनी नहीं रिक्वायर्ड होगी तो एम्प्लॉयमेंट फॉल होगी. इकोनॉमिक्स ट्रेंड जो होगी वो नेगेटिव में जाना चालू हो जाएगी. ओके, इस फेज में नेगेटिव में. यहाँ पे जो एक्सपेंशन स्टेज होता है उसमें वो पॉजिटिव में जाना चालू करती है. यहाँ पे वो पॉजिटिव का हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है. यहाँ पे वो हाईएस्ट से वापस गिरना चालू हो जाता है. एंड इन द डिप्रेशन फेज वो माइनस में जाना चालू हो जाता है. इन थ्रफ फेज क्या होता है? यू फेस द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, सबसे कम एम्प्लॉयमेंट हो जाती है कंट्री में. ओके, प्रेशर कम हो जाता है प्राइस के ऊपर, बिकॉज अब आपके पास सप्लाई सफिशिएंट है और डिमांड एकदम भी नहीं है. तो प्राइस का जो प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बिकॉज नाउ द कस्टमर्स आर इन द पोजिशन टू कंट्रोल द प्राइस, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ डिमांड. तो जो सेलर होता है वो प्राइस को डोमिनेट नहीं कर पाता अब, एंड यू आर एट अ लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड द लास्ट फेज विच इज देयर, विच इज द रिकवरी फेज, उसमें क्या होता है? स्लोली ये नेगेटिव ग्रोथ रेट से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है. जब तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन पूरा नहीं होता तब तक वो रिकवरी फेज में ही माना जाता है. धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट लाइन पे आना चालू हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाइन पे आना चालू हो जाता है, एंड प्रेशर ऑन प्राइसिंग इज स्टिल लो बिकॉज डिमांड इज येट नॉट इक्वल टू द सप्लाई. While a single business cycle may start from expansion phase and end at a recovery phase, the actual measurement of business cycle expansion takes place through trough of the earlier cycle to the peak of the current cycle, and the measurement of business cycle recession takes place from peak to the trough. तो आप लोग जो स्टडी करते हैं ना बिजनेस साइकिल की, वो स्टडी होती है थ्रफ से लेकर, आपकी कोई भी थ्रफ से लेकर पीक तक की जो साइकिल होती है वो एक स्टडी मानी जाती है, एंड पीक से लेकर थ्रफ तक की जो दूसरी साइकिल होती है वो दूसरी स्टडी मानी जाती है. तो ये याद रखिएगा आप लोग. अंडरस्टैंडिंग द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड रियल बिजनेस साइकिल. द रियल बिजनेस साइकिल considers studying business cycle by making the fundamental assumption that these business cycles are eventually driven by technological shocks instead of monetary shocks or modification in expectation. These technology shocks comprises of bad weather, innovations, strict safety regulations, and more. The technology shocks are believed to be a result of unanticipated technological development which has an impact on the productivity. जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स पढ़े वो ही वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ये जो हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर यहाँ पे पढ़े. ओके, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स. बीसीजी मैट्रिक्स क्या है? ये एक मैट्रिक्स है विच वाज डेवलप्ड बाय बोस्टन कंसल्टेशन ग्रुप करके एक ग्रुप है. आप लोग ने सबने सुना होगा, दे आर क्वाइट फेमस इन द मार्केट, बोस्टन कंसल्टिंग हाउस. तो दे आर क्वाइट फेमस. उन्होंने ये एक मैट्रिक्स बनाया था. इसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में दो चीजों को रखा था. आपको इसमें ये सारी चीजें याद रखनी है. ओके, देखिए उन्होंने एक्स एक्सिस में रखा है रिलेटिव मार्केट शेयर, पोजीशन इज इन एक्स एक्सिस, एंड बिजनेस ग्रोथ इज इन द वाई एक्सिस. ओके, तो आइए देखते हैं. ग्रोथ ये जो हुआ ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और रिलेटिव मार्केट शेयर जो आपका हुआ ये एक्स एक्सिस हो गया. अब इसको उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है. आपको इसमें कलर्स भी याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर द कलर्स. आप देखिए जहां पे जिस तरह एरो पॉइंट कर रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन देयर. यहाँ पे एरो इज, इसका मतलब है हाईएस्ट फेज. ओके, इट इज एट अ हाईएस्ट लेवल.
तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मार्केट शेयर भी हाईएस्ट है एंड आपका मार्केट ग्रोथ भी हाईएस्ट है, उसको स्टार फेज बोला जाता है। वो कंपनी के लिए एक बेस्ट फेज माना जाता है। जिस पर्टिकुलर फेज में आपका मार्केट शेयर हाई है बट आपका मार्केट ग्रोथ कम है, उसको कैश काउ बोला जाता है। जिस फेज में आपका मार्केट शेयर भी कम है एंड आपका मार्केट ग्रोथ भी कम है, उसको डॉग फेज बोला जाता है। और जिस फेज में आपका मार्केट शेयर कम है एंड आपका मार्केट ग्रोथ जो है वो हाई पे है, उसको क्वेश्चन मार्क फेज बोला जाता है। अब ये चार फेज होते क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टार फेज क्या होता है? दीज आर द product that possesses the best market share and produces the most cash. These products come first to the market as well as monopolies are considered at star. मतलब कोको कोला, पेप्सी ये आ जाते हैं तो आपके जनरली स्टार फेज में। They take up large amount of cash because of high level of growth rate. Businesses can prefer to invest in star phase. अगर कोई भी बिजनेस जो स्टार फेज में है, आई वुड एज अ इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फेज, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया है एंड मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया है। तो आपको मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में रिलेटिव मार्केट शेयर एंड यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ है वाई एक्सिस में। ओके, अब आते हैं कैश काउ में क्या होता है, विच इज दिस फेज। कैश काउ में क्या होता है? कैश काउ कौन सा फेज है? जहां पे आपका मार्केट शेयर ज्यादा है बट आपका मार्केट बिजनेस ग्रोथ कम हो रहा है। ओके, these are the business products that have a higher market share but lower market growth rate. They tend to consume less cash as compared to cash they generate. The firms can prefer to invest in cash cows in order to maintain the existing level of productivity. This is not a very bad situation, but यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कैश जनरेशन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू या थोड़ा बहुत कम होता है आपका कैश एक्सपेंडिचर से। तो उसके कारण क्या होता है, आपके प्रॉफिट्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट स्टिल यू कैन एंटिसिपेट ग्रोथ इन दिस फेज एंड यू माइट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड फेज है हमारा डॉग फेज। ये वाला जो फेज है ये डॉग फेज है। डॉग फेज में क्या होता है, दिस पर्टिकुलर फेज, डॉग फेज में क्या होता है, दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लो ग्रोथ रेट एंड लो प्रोडक्ट्स मार्केट शेयर। मतलब यहाँ पे आपका मार्केट शेयर भी कम है एंड ग्रोथ भी आपका कम है। दे नीदर कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैश नॉर दे अर्न लॉट ऑफ कैश। कंपनीज कैन प्रेफर टू सेल ऑफ देयर entity at this particular point of time as they are not able to generate adequate return for the shareholders. Hence, these are considered as cash traps as companies have their money tied up in them. ये ऐसी पोजीशन होती है जहां पे आपका रेवेन्यू भी उतना बढ़िया नहीं है, आपका एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा है, बट आप प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग लॉट ऑफ कैश नॉर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कैश। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू प्रिफर इज, जनरली आप अपनी कंपनी को बेचने का ट्राई करते हो, यू ट्राई टू सेल द कंपनी सो दैट यू कैन अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी एट दैट पर्टिकुलर फेज। ओके, अगर आप उस फेज को भी क्रॉस कर दोगे तो शायद आप अपनी कंपनी को बेच नहीं पाओगे। फोर्थ फेज इज द क्वेश्चन मार्क फेज। दिस फेज में क्या होता है, दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लो मार्केट शेयर अगेंस्ट अ हाई मार्केट ग्रोथ रेट। दे टेक अप अ लॉट ऑफ कैश बट टेंड टू जनरेट अ लिटिल रिटर्न। बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन मार्क फेजेस आर इंडियन स्टार्टअप्स। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टअप्स में जनरली यू एंड अप स्पेंडिंग मोर एंड अर्न वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। With their potential to grow fast and turn into star, companies can prefer to invest in them at this particular phase. आपने देखा ही होगा फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, ये सारे एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके ये वाले फेज में थे, क्वेश्चन मार्क फेज में, बिकॉज पीपल हैड फेथ कि दे हैव अ गुड पोटेंशियल टू ग्रो and they might capture the market in future. That's why lot of investors invested in these companies and made sure they make money once this company go from question mark to star position. Understanding of business, GE McKinsey matrix we have understood it is a so GE McKinsey we will take up in a next class. इसमें 9 बॉक्स मैट्रिक्स होता है, ये हम लोग आपका पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू क्लोज दिस अलोंग विथ द चैप्टर विच इज आपका चैप्टर नंबर 6 हम लोग उसके साथ करेंगे, विच इज वैल्यूएशन अप्रोचेस। उसके साथ हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। Hopefully, you guys enjoyed the session. I will come up with the session on this chapter number 6 very soon. Chapter number 6 and 7 very soon. That is valuation and valuation approaches and all.
तो उसमें आएंगे एंड तब हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे. I will share the notes also on my blog about on this particular topic. Please do like, share, and subscribe to our channel. If you have any specific topic which you guys feel you need a specific lecture on, please let me know via comment section. I will be happy to help you guys. Thank you, everyone.